A very good morning and Jai Hind class 11th. Continuing with chapter number 3, that is public, private and global enterprises. Dear students, in the last lecture we have discussed about the private sector enterprise and public sector enterprise, as well as we have discussed the difference between the private and public sector enterprises. Right? We are done with the forms of public sector enterprises, and in the previous chapter we are done with the forms of private sector enterprises. There are three forms, that is departmental undertaking, statutory corporation and government company. In your last lecture we discussed these three forms, right, in short. But from today we'll discuss it one by one separately so that you'll be better understood. Here is a chart that is forms of business enterprises or organization, that is private sector and public sector. Dear students, private sector you are already done with, as like sole trader, partnership, joint Hindu family, joint stock company, cooperative society. In this chapter, we'll continue with the public sector enterprises, and there are three forms, that is departmental undertaking, statutory corporation and government company. So today we are going to start up with the departmental undertakings. What is departmental undertaking? A departmental enterprise is being organized, बनाई जाती है, फॉर्म की जाती है, फिनेंशियल सपोर्ट की जाती है और कंट्रोल की जाती है in as much the same way as any government department. Make it a point. If we are talking about the departmental undertaking, so it is being organized, financed and controlled by the government only, by the government department only, like any other department. अब इसे कौन रन करता है? It may either be run by the central government or the state government. Some of the examples of departmental undertakings are Post and Telegraphs, Indian Railways, the Chittaranjan Locomotives Work, the Integral Coach Factory, Perambur, the Diesel Locomotive Works, Varanasi, National Instruments Factory, Kolkata, Precision Instruments Factory, Kolkata. These are the examples of departmental undertakings. These are the enterprises which are being organized, financed and controlled by either central government or by state government. Okay, so what are the features of departmental undertaking? हमें ये चीज़ समझ में आ गई है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में, दैट ये ऑर्गेनाइज, इसका सारा फाइनेंस का सिस्टम और इसका कंट्रोल किसके हाथों में होता है? गवर्नमेंट के, लाइक एनी अदर डिपार्टमेंट. इसे या तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट चलाती है. सो व्हाट कुड बी द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स? फर्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. इसे आप एक्सटेंशन कह सकते हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, बिकॉज इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट जो कि अटैच होता है पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से. तो आप इसे सिंपली कह सकते हो दैट इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का एक्सटेंशन हो जाना, फैलाव हो जाना, लाइक रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, डिफेंस, ये सब गवर्नमेंट के अंडर ही तो आते हैं. दे ऑल आर अटैच्ड विद द स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज एट द सेंटर, राइट. सो आप इसे कह सकते हो एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो कि कौन लुक आफ्टर करता है? बाय द गवर्नमेंट. जो कि कौन फिनेंस करता है और ऑर्गेनाइज करता है? ओनली गवर्नमेंट. रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, कम्युनिकेशन, ठीक है. इन सब में प्राइवेट भी आते हैं, बट ये सब यू नो द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक, लिमिटेड एंड नॉट लिमिटेड, प्राइवेट, लिमिटेड एंड लिमिटेड, राइट. सो नेक्स्ट इज फिनेंसिंग. फिनेंस, it is being financed by annual appropriations from the treasury. गवर्नमेंट की ट्रेजरी से जो भी गवर्नमेंट को एनुअल फ़ायदा होता है, एनुअली जो भी उनके पास रेवेन्यूज़ होते हैं वो ट्रेजरी से पे किए जाते हैं इन डिपार्टमेंट्स को. इनका एक्चुअली बजट पास होता है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर से, जो भी डिपेंड करता है. ओके, जो भी इसे कंट्रोल करता है वो लास्ट में एक एनुअल अप्रोप्रिएशंस क्रिएट करते हैं इसकी. इनको जो रेवेन्यूज़ गवर्नमेंट को मिलता है उसी के थ्रू, उसको देखकर इनका बजट पास होता है फॉर द ईयर.
ठीक है. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल. इट इज़ वेरी क्लियर दैट इट इज़ बीइंग मैनेज एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री. जैसे रेलवे मिनिस्ट्री, राइट, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज. फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री. तो जितने भी उससे रिलेटेड मैनेजमेंट करना होगा, कंट्रोल करना होगा, डिसीजंस लेने होंगे, दे बीइंग टेकन बाय द इंडियन रेलवेज से रिलेटेड, दे बीइंग टेकन बाय द रेलवे मिनिस्ट्री. अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जो इनकी लिखा पढ़ी कहते हैं ना, बजट्स ऑडिट करना, वो सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू होता है. ठीक है, इनके बजट, इनकी अकाउंटिंग, किसको ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, इनके ऑडिट, इनके सारे फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें, वो सब दे आर बीइंग कंट्रोल्ड एंड एप्लीकेबल टू दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. स्टाफिंग, जो एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं वो गवर्नमेंट को सर्व करते हैं. उनका रिक्रूटमेंट, उनकी अपॉइंटमेंट या उनकी जो भी सर्विस में कंडीशंस आती हैं, परमानेंट स्टाफ, टेम्पररी स्टाफ, दे जस्ट लाइक दोज ऑफ अदर सिविल सर्वेंट्स. आप उनको कंसिडर करेंगे नहीं, कंसिडर नहीं, दे आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. दोज हु आर वर्किंग विद रेलवे, इंडियन रेलवेज, राइट, टेलीग्राफ्स, कम्युनिकेशन, पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर्स में, ब्रॉडकास्टिंग या डिफेंस में आप जाते हो, तो दे जस्ट लाइक दोज ऑफ अदर सिविल सर्वेंट्स जो गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं. अकाउंटेबिलिटी, दे आर अकाउंटेबल. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अकाउंटेबल होती है जिस मिनिस्ट्री के अंडर वो आती है, जिस मिनिस्ट्री के साथ वो अटैच होती है. जैसे इंडियन रेलवे कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री, तो दे आर, इंडियन रेलवे विल ऑल्सो बी will always be accountable to the railway ministry. कुछ भी उन्हें बताना होगा, कुछ भी उन्हें आंसर करना होगा, they'll be answerable to the railway ministry. Its management is directly under the concerned ministry, जिनके साथ वो attached हैं. So these were the features. Now look at the merits of a departmental undertakings. First, parliamentary control. Departmental organization ensures maximum degree of parliamentary control on the operation of the enterprise. बेटा चाहे वो इंडियन रेलवे है, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग है, चाहे वो टेलीग्राफ है, कुछ भी है, कंट्रोल पार्लियामेंट से ही रहता है, बजट पार्लियामेंट से ही पास होता है, बिकॉज दे आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. अकाउंटेबिलिटी, इट ensure a high degree of accountability to the parliament. Why to the parliament? Because the annual budget is to be passed by the parliament only. So वो accountable होंगे to the parliament. Source of revenue, it is financed through direct allocation of fund from the concerned ministry. जैसे इंडियन रेलवे को अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो रेलवे मिनिस्ट्री उनको हेल्प करेगी, उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराएगी. सोर्स ऑफ रेवेन्यू विल कम फ्रॉम द रेलवे मिनिस्ट्री टू द इंडियन रेलवेज. द रेवेन्यू अर्नड बाय द एंटरप्राइज, जो रेवेन्यू इंडियन रेलवे अर्न करेगी वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाएगी और वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू होगा, गवर्नमेंट की इनकम होगी. मतलब फंड भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और जो इनकम होगी वो भी गवर्नमेंट के पास ही जाएगी. नेशनल सिक्योरिटी, दिस एंटरप्राइज इज मोस्ट सुटेबल व्हेन नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड because it is it is under the direct control and supervision of the ministry. If in case any kind of problem occur, the railway ministry will be held responsible. Accomplishment of objective, बिकॉज ये डायरेक्ट कंट्रोल में होता है गवर्नमेंट के, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो कि गवर्नमेंट ने लेट डाउन किए हैं. गवर्नमेंट कोई भी पब्लिक सेक्टर का, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, पहला मोटिव होता है टू सर्व द सोसाइटी, फॉर दिस टू डू द वर्क फॉर द सोशल वेलफेयर. सेकेंड इज़ टू अर्न प्रॉफिट, अर्न रेवेन्यू. So because they are under direct control of governments, so they achieve the social objective laid down by the government effectively. Monopoly power, departmental organization have relatively high degree of monopoly power. वो हमेशा सुटेबल होते हैं उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जिनकी स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस होती है, लाइक इंडियन रेलवे है ना, लाइक डिफेंस, उनकी अपनी मोनोपॉली है, अपनी पावर्स, हाई डिग्री ऑफ मोनोपॉली पावर रहती है. डिफेंस में अगर हम बात करें उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. टेलीग्राफ, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस कंपनीज, इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अपनी मोनोपॉली पावर होती है.
right? So these were the merits of departmental undertaking. Now comes the limitation. If one have advantages, so there must be disadvantages, there must be some limitations. What first is lack of flexibility. जो डिपार्टमेंट होता है वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल में होता है बाय द पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बिकॉज बजट कहाँ से पास होता है? पार्लियामेंट से. कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट. सो वो फ्लेक्सिबल तो हो ही नहीं सकते. वेन एवर दे हैव टू टेक डिसीजन दे नीड टू आस्क दिस टू गवर्नमेंट और टू दी कंसर्न मिनिस्ट्री. तो ये प्रॉपर नॉर्मल बिजनेस की तरह तो काम नहीं कर सकते. उसमें तो ओनर होता है, ओनर से परमिशन ली जाती है. ओनर अपने नीचे बहुत सारे लोगों को अपॉइंट कर लेता है, जो एक हिरार्की क्रिएट होती है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है. बट यहाँ पर व्हेन इट इज़ बीइंग managed and controlled by the parliament and the government, so lack of flexibility is there. They cannot take quick decision. They need to ask to the government first. They need to take the approval first. It goes when flexibility is not there, delay in decision making will be there, because too much centralization of control which result in delay. Centralization क्या होता है? जब top authority, so what is centralization? Top level, मिडिल लेवल एंड ऑपरेटिव लेवल. ये 3 लेवल होते हैं हमारे किसी कंपनी में. ये मैं प्राइवेट में बता रही हूँ, पब्लिक में भी ऐसे ही होता है. टॉप लेवल में लाइक हमारे जीएम, जनरल मैनेजर, सीईओ ऐसे आ गए. मिडल में मैनेजर्स आ गए, ऑफिसर्स आ गए, हमारे मैनेजर्स आ गए, ऑफिसर्स आ गए. ऑपरेटिव में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं हमारे साथ. ठीक है. अब अगर हम इसमें बात करते हैं डिले इन डिसीजन मेकिंग, सेंट्रलाइजेशन रहता है. एक वर्ड आया बेटा, सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का मतलब सारी की सारी पावर पार्लियामेंट के पास होती है, वो बजट पास करते हैं, या फिर गवर्नमेंट आप कह लो, जो भी मिनिस्ट्री, कंसर्न मिनिस्ट्री है. तो आप खुद से, अगर किसी रेलवे में आप काम कर रहे हो तो वो सब लोग खुद से डिसीजन नहीं ले सकते. दे विल हैव टू वेट फॉर द डिसीजन, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, तो डिसीजन कहाँ से लेंगे? फॉर दैट यू नीड टू अप्रोच टू द पार्लियामेंट और टू द गवर्नमेंट. डिसीजन जनरली डिलेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस. पॉलिटिकली इश्यूज रहते हैं इसमें हमेशा. ओके. नेक्स्ट इज कॉन्जर्वेटिव अप्रोच. डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज आर कॉन्जर्वेटिव्स इन टेकिंग रिस्की डिसीजन. इन्हें पता है द नॉर्म्स आर लेट डाउन, उन्हें उसी के अकॉर्डिंग काम करना है. थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं रिस्क लेने में. तो जैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद पेटीएम है ना, फ़ोन पे, इन सब ने अपॉर्चुनिटीज़ लिए, प्राइवेट हो गए. तो गवर्नमेंट एक बार सोचती है, इट्स बिकॉज ये रिस्क नहीं ले सकती, ये अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलते हैं. राइट. नेक्स्ट इज रेड टैपिज्म. ये पहले भी वर्ड आया था, बिकॉज आई डिडंट मेक इट क्लियर. इट्स बिकॉज अब आप यहाँ पर समझोगे, चाहे वो रूटीन मैटर्स हो, चाहे डे टू डे ऑपरेशंस हो, पहले प्रायर सेंक्शन लेना पड़ता है रिलेटिव अथॉरिटी से. अगर इंडियन रेलवे को कुछ करना है तो पहले रेलवे मिनिस्ट्री से उन्हें अथॉरिटी लेनी होगी, सेंक्शन कराना होगा. अथॉरिटी नहीं, सॉरी, सेंक्शन कराना होगा, अप्रूवल. सो दी ऑपरेशंस आर बाउंड बाय ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर एंड रूल्स. आपको फिक्स्ड रिजिड प्रोसीजर और रूल्स के साथ काम करना है. दिस क्रिएट अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम इन फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई डिसीजन लेना है, यू कैन नॉट टेक. You need to take prior approval from the authority. तो unavoidable problems create होती हैं. smoothing of programs नहीं हो पाता है, functioning नहीं हो पाती है. That is called red tapeism. Okay. Next is political interference. There is too much political interference. Day to day admin में भी बहुत ज़्यादा interference रहती है, because parliament is involved, government is involved. So commercial freedom नहीं हो पाती है मैनेजमेंट के पास. ओके. अगर उन्हें बात करनी है तो वो पहले अथॉरिटी से अप्रूवल लेंगे, सेंक्शन कराएंगे किसी भी चीज़ की, डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड भी. सो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है. इनडिफरेंट टू कंज्यूमर नीड. डायरेक्टली टच में नहीं होते कंज्यूमर के, तो पता नहीं होता है कंज्यूमर की नीड क्या है. एंड दे डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विस टू देम. उन्हें पता है वी आर गोइंग टू सर्व दी सोसाइटी, बट आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको मार्केट का पता होता है, बाहर क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की डिमांड क्या है, लोगों की नीड क्या है, लोगों की वांट क्या है. बट यहाँ पर दे आर इनडिफरेंट टू द कंज्यूमर नीड, अ लिटिल बिट इनसेंसिटिव.
सो कहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सुटेबल रहता है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीक्रेसी की ज़रूरत होती है, जैसे डिफेंस में, जहाँ पर गवर्नमेंट डिज़ायर टू एक्सरसाइज फ्रॉम कंट्रोल एंड मोनोपोली पावर, जो हमने पढ़ा है, जैसे डिफेंस, ब्रॉडकास्टिंग या कम्युनिकेशन में। फिर इन्हें बाहर के लोगों से क्या मतलब है? इन्हें अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करना है। जहाँ असेंशियल आइटम्स को छोड़ के वे स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज़ नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, लोगों के हित में ही जहाँ स्ट्रिक्ट कंट्रोल की ज़रूरत हो, असेंशियल आइटम्स को छोड़ दो। ठीक है, आप लोग लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में पैसा जमा करते हो अपने पेरेंट्स से पूछना, वो लोग डिपॉजिट करते हैं पैसा, उन्हें पता आने वाले टाइम में उसका डबल होके मिलेगा या अच्छे इंटरेस्ट रेट पे उनको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर लोगों की सेफ्टी हो रही है, उन्हें नहीं पता बाहर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जस्ट खुद भी अर्न कर रहे हैं, लोगों को भी पैसा कमवा रहे हैं। इन दिस केस प्राइवेट पर हम बिलीव नहीं कर सकते। वेयर द अंडरटेकिंग इज टू बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ रेलवेज, इससे पैसा आएगा और उसको आगे इन्वेस्टमेंट में लगाया जाएगा। पैसा आना ही आना है, इंडियन गवर्नमेंट्स का है, तो हम लोगों को ट्रस्ट रहता है, जो भी इनका रेवेन्यू होता है वो फर्दर इन्वेस्टमेंट में ये लगा देते हैं। प्राइवेट रिस्क लेते हैं, रिस्क में वो लॉस भी बियर करते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नाउ कम्स द स्टैच्यूरी कॉरपोरेशन। What is there in statutory corporation? A statutory or public corporation is an autonomous business enterprise which is created by law to conduct the activities assigned to it. पब्लिक कॉरपोरेशन भी कह सकते हो आप इसे। ये एक तरह का एंटरप्राइज होता है जो लॉ ने क्रिएट किया है, कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं इन्हें। ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस बिजनेस एंटरप्राइज करते हैं ये। दे हैव सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई बैंकरप्ट हो जाता है, उसके बाद भी चलता रहता है। इट इज़ सेटअप अंडर अ स्पेशल एक्ट पास्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। इट इज़ क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट, मीन्स लॉ, कानून से क्रिएट किया जाता है। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, इसीलिए इसे पब्लिक कॉरपोरेशन भी कहा जाता है। The law defines, statute means law, the law defines its object, power and function। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या इसके पावर्स होंगे, कैसे फंक्शन करेगा। It is created by law to conduct the activities assigned to it। कैसी एक्टिविटीज़? They are suitable for running transportation service, पानी और बिजली की, इंश्योरेंस की, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, दे आर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो आप इफ़ योर फादर वर्क्स इन एन कंपनी, वहाँ पर ESI मिलता है उनको, मेडिकल हेल्प हो जाती है जिससे। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये कुछ एक्टिविटीज़ असाइन की जाती हैं इन्हें। ओके, एंड इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ so that they can conduct the activities assigned to them. What are the features of statutory or public corporation? First is formation, set up under the act of parliament and is being governed by provision of the act। पार्लियामेंट इसे सेटअप करता है क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ दी जाती हैं जो इन लोगों को करनी होती हैं, इन कॉरपोरेशंस को करनी होती हैं, और कुछ प्रोविजंस एक्ट बना दिए जाते हैं कि उनको इस प्रोविजंस के साथ ही काम करना है। उस एक्ट में, जिनमें वो प्रोविजंस लिखे हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें उनकी पावर्स भी होती है मेंशन, ड्यूटीज़ भी मेंशन होती है और उनके फंक्शन भी मेंशन होते हैं। नेक्स्ट इज ओनरशिप। इट इज़ होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ओके, बट ऑटोनॉमस बिजनेस एंटरप्राइज होती है। आप खुद से सोच के करेंगे क्योंकि प्रोविजंस ऑलरेडी लॉ से क्रिएट कर दिए जाते हैं। अगर कोई लॉस होता है उसको भी गवर्नमेंट बियर करेगी। नेक्स्ट इज सेपरेट एंटिटी। इट इज़ अ बॉडी कॉरपोरेट एंड हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एक कॉरपोरेट बॉडी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, चलती रहती है। आप भी स्यू कर सकते हो, मुकदमा कर सकते हो, और कोई और भी आप पर सूट कर सकता है, मुकदमा कर सकता है। ठीक है, अगर किसी तरह की उन्हें फ्रॉड लग रहा है तो आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो इसके थ्रू, आप कोई प्रॉपर्टी अपने नाम से ले सकते हो। इट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन, मतलब डेथ हो गई किसी की, बैंकरप्ट हो गए, फिर भी चलता रहेगा। कॉमन सील होती है कॉरपोरेशन की, पब्लिक कॉरपोरेशन की या स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन की कॉमन सील होती है, राइट। जैसे
आपने देखा होगा ना, लाइफ इंश्योरेंस तो सबने देखा होगा, एक सील होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपका पैसा नहीं मिल रहा है, आपकी किस्त जमा नहीं हुई है, आपने की है या कुछ भी, तो आप उसके अगेंस्ट स्यू कर सकते हो। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। आप समझ रहे हो इसका एग्जाम्पल, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इट इज़ जस्ट यू कैन sue and you can be sued in case of any fraud. What comes in financial autonomy? This type of enterprise is usually independently financed. They are independently financed. Public से पैसा लेते हैं या गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं, okay, by deriving services to them like sales of goods and services. You are going to deposit some money in life insurance company every month, every year, annually, quarterly, right? That money is being used by the government. उससे जो रेवेन्यू क्रिएट होता है वो गवर्नमेंट का प्रॉफिट है। इट हैज़ एन अथॉरिटी टू रिटेन इट्स अर्निंग एंड यूटिलाइज देम फॉर द बिजनेस। इनके पास अथॉरिटी होती है अपनी अर्निंग को रिटेन करने की और उसे बिजनेस में फ्यूचर यूज़ करने की। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ बजटिंग एंड अकाउंटिंग। कोई स्ट्रिक्ट बजटरी अकाउंट या ऑडिट नहीं होता है इसमें, इन डिपार्टमेंट को अंडरटेक करने के लिए। ये इनका अपने आप में काम जो होता है, इट इज़ ओनली ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ एक्ट। उस एक्ट के थ्रू ही काम करते हैं। स्टाफिंग, द एम्प्लॉयज़ ऑफ द एंटरप्राइज आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट एंड आर नॉट गवर्नड बाय द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अंडरलाइन दिस, दे आर नॉट द गवर्नमेंट या सिविल सर्वेंट्स नहीं होते हैं, दे आर नॉट गवर्नड बाय एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। कभी सम ऑफ द ऑफिसर्स आर टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इन्हें डिप्यूट किए जाते हैं ताकि वो उनके सर्विसेज को देख सकें, बिकॉज एक्चुअली तो वो पब्लिक के हित में काम कर रहे हैं। सो एक वंस इन अ वाइल some officers are taken from the government department on deputation to head these organization. ये हायर कर सकते हैं एक्सपर्ट और प्रोफेशनल की सर्विसेज भी। अकाउंटेबिलिटी, it means it is not necessary the government are the civil servants, the people are the civil working under them are the civil servants. Okay, sometimes these enterprise is not necessarily being governed by the government only. Okay, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक कॉरपोरेशन इज़ फुल्ली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट ही ले डाउन करती है, एक्ट के थ्रू काम करते हैं। इट हैज़ टू सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट, दे हैव द ऑटोनॉमी, अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, बट दे हैव टू सबमिट द एनुअल रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एवरी ईयर। दे नीड टू सबमिट द एनुअल रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर एवरी ईयर। ओके, नाउ कम्स द मेरिट्स ऑफ अ स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन। फ्लैक्सिबल, ऑटोनॉमस है, खुद से करेंगे तो फ्लैक्सिबिलिटी रहेगी। दे क्लोथ विद द पावर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने इन्हें पावर दी हुई है, एक एक्ट पास करते हैं गवर्नमेंट प्रोविजंस का। ओके, सो दे आर बीइंग पजेस्ड ऑफ द फ्लैक्सिबिलिटी, फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट्स ऑफ रिजिडिटी। कोई फिक्स्ड रूल्स और रेगुलेशन नहीं होता है, अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। डिलेटरी एक्शन नहीं होते हैं जो कि गवर्नमेंट की वजह से डिले करने पड़ जाएं। दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस, फ्लैक्सिबिलिटी रहती है। फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, सेंट्रल बजट से फंड नहीं आता है, इसीलिए ये फ्री होते हैं, अपने डे टू डे वर्किंग अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। एफिशिएंट वर्किंग होती है, पब्लिक से पैसा लेते हैं। ऑटोनॉमस सेटअप, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन होती, ये अपनी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर को खुद डिफाइन करते हैं with powers to the act to them by the act, पार्लियामेंट्स के थ्रू। बेटा स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन आपको पता है सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट इज़ बीइंग गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ एक्ट। उसके अकॉर्डिंग ये काम करते रहते हैं, अपनी ऑटोनॉमी चलाते रहते हैं। ठीक है, तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है इन्हें। फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक को भी हेल्प करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत मदद करते हैं। जो पैसा आता है वो इनका रेवेन्यू होता है, साथ ही में वो गवर्नमेंट की या हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। अकाउंटेबिलिटी, पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होते हैं। दैट इज़ नॉट मैनेज्ड अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, सिर्फ इसलिए कि ये कोई पब्लिक के हित में काम कर रहे हैं, अहित में काम नहीं कर रहे हैं। वंस इन अ ईयर इन्हें बताना होता है व्हाट दे आर डूइंग। There must be some limitations of a statutory corporation. First is theoretical autonomy. पेपर पर काम होता है सारा, चाहे वो ESI का हो, लाइफ इंश्योरेंस का हो, राइट, एंड इट इज़ सब्जेक्ट टू मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड डज नॉट एन्जॉय एज मच एज ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स वर्किंग। सारा पेपर वर्क होता है, तो थियोरेटिकल ऑटोनॉमी होती है इसमें।
हाँ, ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट ऑन पेपर ओनली. आप देखा होगा ना LIC के भी, आप ज़्यादातर बेटा यही देखा होगा आपने, या ESI देखा होगा अपने फादर के लिए, फादर या मदर को कटता होगा उनका कंपनीज़ के थ्रू ESI, तो वो सारा पेपर वर्क होता है इसमें. सो दिस इज़ द लिमिटेशन फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशन. गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड पॉलिटिकल लीडर्स ऑफन, बीच में अक्सर इसमें इंटरफेरेंस करते हैं टू चेक वेदर दी थिंग्स आर गोइंग ऑन करेक्टली और नॉट. अनडिज़ायरेबल प्रैक्टिसेस, ऑफिशियल समटाइम में यूज़ देयर ऑटोनॉमी, करप्शन, जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है उसके लिए काम नहीं करते हैं, वो उससे अनफेयर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ इनकॉम्पिटेंट डायरेक्टर ऑफ एडवाइज़र, कई बार इनकॉम्पिटेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट कर लिया जाता है. दे बीइंग गवर्न बाय द अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट. दे डू नॉट possess द क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग या टैलेंट रिक्वायर्ड टू द मैनेज द कॉरपोरेशंस. तो वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में. समटाइम्स इट हैपन. Inefficiency, public corporation generally do not face much competition, do not have profit motive due to which their working may turn out to be inefficient. Profit motive तो होता ही नहीं है, लोगों को सर्व करना होता है, तो sometimes it becomes inefficient. इसकी suitability क्या है? Undertaking requires special power defined by act or statute, law, act by the parliament, जहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवल होता है. वेयर द अंडरटेकिंग रिक्वायर अप्रोप्राइट कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, खुद से भी काम करें और पब्लिक को भी सर्व करें. ऐसी जगह पर स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन बहुत सूटेबल होती है. दीज आर द एग्जाम्पल्स लाइक लाइफ इंश्योरेंस, फूड कॉरपोरेशन, ESI, सेंट्रल वेयर हाउसिंग, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन. So dear students, today we are done with the explanation of departmental undertaking and statutory corporation. Tomorrow we'll discuss the government company, the form of public sector. That's all for today. Have a good learning. Thank you.